Hello students, this is R. K. Patel, PGT Biology, Kendriya Vidyalaya Maligaon. Today I will teach you about the human health and diseases. Students, you know the importance of health, and you also know that if you have good health, you can do everything. Without good health, we cannot perform our work properly. So first come to know about the health. Students, what is health? Students, हेल्थ के बारे में ये करेक्ट डेफिनेशन WHO ने दिया है. Students, if you don't have any disease and you are physically fit, yet one cannot say that you are healthy, as the definition given by WHO, you know, World Health Organization. The definition of the health given by WHO is health is the state of complete physical, क्या होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being. So one can clearly say that if any person have not any disease, that means not he is healthy. For being healthy, one have to complete physical, mental and social well-being. Health increases productivity and ensures longevity. What do you mean by productivity? If you know that if your health is good, you can do all your activities excellently, properly, and longevity. Productivity and longevity means two meaning can be taken from longevity. One is the lifespan and second is the your performance, your output will be for a long time. So this is the definition of the health. Students, here it is very necessary to know ways to ensure good health. What have we to do to achieve a good health? Students, there are different factors which affect the health. So among them, first one is balanced diet. Balanced diet. What do you mean by balanced diet? Balanced diet includes two aspects. First is the nutrients. In your diet, all the nutrients should be there. What are these nutrients? That is carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. These nutrients should be in right amount. These nutrients should be right amount. Then we can say that this is balanced diet. Besides, there should be amino acids, essential amino acids in right quantity, and there should be clean water. Second thing is personal hygiene. Students, personal hygiene means keeping every parts of our body neat and clean so that any disease may not spread there. What can you do to get personal hygiene? You should wash your hand regularly before and after eating, and if you should brush your teeth
properly when you are going to touch infants. First you should wash your hands. So personal hygiene should be achieved by your good habits. Exercise. Students, you know that exercise is very important for our life. If you know that if you don't do exercise, you may be obese. मोटापा, और जानते हैं कि मोटापा से लाइफ स्टाइल डिजीजेज आती हैं। मोटे व्यक्ति में डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज और योगा से हम अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं, और एक्सरसाइज और योगा से हमारा जो फूड है इजली डाइजेस्ट होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, awareness about prevention and control of disease. We should know about the disease. We also should know how the diseases are spreaded, and we should also know that how can we check to spread the diseases. So awareness should be there. When we are aware, we may be safe from different diseases. Proper waste disposal and control of vectors. You know that there are a huge amount of waste generated daily. If these wastes are thrown here and there, they will be site for reproduction of different types of worms, different types of vectors. What are vectors? Vectors are carriers, students. Vectors are carriers of disease. How they carry the diseases? They sit on the fresh food or water, and if they have germs, they will put the germs from there, and in this way they spread diseases. You know about the house flies, you know about the mosquitoes. These are the vectors, carriers. They spread from diseases, from diseased person to healthy person. Why do disease occur? Students, डिजीज क्यों होता है? इसके 3 रीजन होते हैं, 3 लेवल पे हम कहते हैं। एक जेनेटिक रीजन्स, इनेट डिफिशियंसी एंड इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस आर स्पेसिफिक इन सम वे। कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पे कोई जर्म्स आएगा, पैथोजेंस आएगा, लेकिन उसमें डिजीज काज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जेनेटिक जो सेटअप है और उसकी जो इम्यूनिटी है स्ट्रांग है, इसलिए उसमें डिजीज काज नहीं होगा। लेकिन कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसा व्यक्ति है जो कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ इन सब इन्वायरमेंट से, उसमें डिजीज बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है। आप लोगों ने अपनी क्लास में भी देखा होता, कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक बच्चे को कॉमन कोल्ड हुआ है तो दूसरे को भी हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा उसी के बगल में बैठा उसको कॉमन कोल्ड नहीं होता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीजन है इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजीजेज इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, और इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड होने का कारण वो पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन दोनों में की कमी से होता है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट्स, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल आज का जो मॉडर्न एज लाइफ स्टाइल है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, आजकल जो है जंक फूड ले रहे हैं लोग, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स बढ़ रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो है डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कैंसर का,
तो कैंसर जो है सम केसेस में तो ये जेनेटिक होता है, पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों में भी होता है, लेकिन पेरेंट्स में है तो उनके बच्चों में जाने की प्रबल संभावना तब हो जाती है जब उनके बच्चे जो लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो ये दोनों रीजन से हो सकता है, जेनेटिक रीजन है लाइफ स्टाइल, इसी तरीके से हाइपरटेंशन डायबिटीज ये जेनेटिक हो सकता है कुछ सेंस में, लेकिन लाइफ स्टाइल के कारण ये ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा कि जेनेटिक में किस तरीके से डिफरेंसेस है, एक आदमी कभी कभी स्मोकिंग करता है उसको लंग कैंसर नहीं होता, और दूसरा आदमी स्मोकिंग नहीं करता उसको लंग कैंसर हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको नहीं होगा, लेकिन वो जेनेटिक मेकअप के कारण अभी नहीं हो रहा, बाद में हो जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कि उतना इम्यूनिटी नहीं है उसमें ये डिजीजेज हो जा रही हैं। स्टूडेंट्स, पैथोजेनिक डिजीजेज क्या हैं? अभी हम ये पहले तो ये दो तरीके से हम टाइप ऑफ डिजीजेज की बात कर लेते हैं। पहले टाइप ऑफ डिजीजेज, स्टूडेंट डिजीजेज को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। Infectious disease can transfer from a healthy person from diseased person to healthy person। ऐसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकता है वो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं। स्टूडेंट्स, कॉमन कोल्ड, ये इसके जब स्नीजिंग करता है ऐसा व्यक्ति तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं बाहर आते हैं और दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, ये सब देखिए इसी तरीके से HIV है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे फूड से, चाहे वाटर से, चाहे वेक्टर से। तो ऐसी डिजीजेज को हम इन्फेक्शियस डिजीजेज कहते हैं। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज की, जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसी तरीके से कैंसर। इसके अलावा जितनी भी माल न्यूट्रिशन के कारण डिजीजेज होती हैं, माल न्यूट्रिशन के कारण स्टूडेंट्स, ये डिजीजेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं हैं, इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज कहते हैं। जैसे सपोज किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो गई या वो व्यक्ति एनेमिक हो गया, एनेमिक मीन्स डिफिशेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये डिजीजेज फैलेंगी नहीं, चाहे हम दूसरे के ही कांटेक्ट में आएंगे, तो इनको नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हम कहते हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीजेज का कारण स्टूडेंट्स पैथोजेंस होते हैं। अब यहाँ पे हम पैथोजेंस जानेंगे। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीजेज इन एनी living organisms। Here we are studying about the human diseases, so we can say that the diseases which can cause diseases, the organisms which cause diseases in human being are pathogens। Students, pathogens may be microorganism such as the Plasmodium vivax, Entamoeba histolytica, bacteria, or they may be microorganisms such as the scaries, tapeworm। Pathogens are the parasites that enter the human body through various means, then multiply and interfere with normal vital activities। अब यहाँ स्टूडेंट्स हेल्थ की डेफिनेशन जाना, तो हम डिजीज की भी डेफिनेशन हमें जानना चाहिए। हेल्थ की डेफिनेशन जाना तो डिजीज के बारे में पढ़ा और उसकी डेफिनेशन नहीं जाना। देखिए, हमारी बॉडी की एक नॉर्मल स्टेट होती है। अगर नॉर्मल स्टेट और एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, तो अगर हमारे नॉर्मल स्टेट या फंक्शनिंग में डिफरेंस आए तो ये जान लीजिए डिजीज की कंडीशन है। तो क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल माल फंक्शंस, डिसफंक्शंस कह सकते हैं। इफ देयर इज फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल डिसफंक्शंस इन आवर बॉडी और बॉडी पार्ट्स, देन वी कैन से दैट द पर्सन इज डिजीज्ड।
हमारे कोई बॉडी पार्ट्स या हमारा कोई जो है पूरे बॉडी में अगर कोई इस तरीके से मैनिफेस्टेशंस होता है, चाहे वो फिजिकल रूप से हो चाहे फिजियोलॉजिकल रूप से हो, चेंजेज हो, तो उसको हम डिजीज कहते हैं। माल फंक्शनिंग के ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो पैथोजेंस हो गया। अब यहाँ पे हमने पैथोजेंस पढ़ा। स्टूडेंट्स, पैथोजेंस बहुत टाइप के हो सकते हैं। हमने बताया कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, निमेटोड्स हो सकता है। ये सब जो है ये पैथोजेंस होते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीजेज में स्टूडेंट्स दो डिजीज, आपको बहुत सारी डिजीजेज हैं लेकिन कुछ सिलेक्टेड डिजीजेज आपको 12th में पढ़नी है। पहला है टाइफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है। स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला हम टाइफाइड पढ़ेंगे। टाइफाइड को हम दूसरा नाम इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, आंत्र ज्वर। इसको याद रखिए, इंटेरिक फीवर, आंत्र ज्वर। अब ये स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है, अभी हम बताते हैं। स्प्रेड तो होता कंटामिनेटेड एंड फूड एंड वाटर से, या हम कह सकते हैं फीको ओरल। अगर एक व्यक्ति में टाइफाइड का बैक्टीरिया है तो उसके फीकल मैटर से बाहर आएगा, और उस फीकल मैटर अगर जा कर के किसी भी तरीके से वाटर रिसोर्सेस में या फूड में पहुंच जाता है, किसी भी माध्यम से पहुंच जाता है, और उसके बाद वो व्यक्ति जो है ओरल मतलब मुख से खाना या पीता है तो उसमें पहुंचता है, तो ये रूट जो होता है फीको ओरल होता है, और ये वाटर और जो है फूड से पहुंच रहा है। साइट ऑफ इन्फेक्शन स्टूडेंट से अक्सर पूछा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सपोज जो है एक व्यक्ति कंटामिनेटेड वाटर लेता है तो टाइफाइड का उसमें बैक्टीरिया है या उसके स्पोर्स हैं, वो पहुंचता है वाटर के थ्रू। सबसे पहले तो स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पे ये प्रोलिफरेट नहीं कर पाता स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टमक में जो है HCl है वो एसिड के प्रभाव से नहीं होता, ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ प्रोलिफरेट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, वहाँ परफोरेशन कर सकता है, उसमें अल्सर क्रिएट कर सकता है, या फिर वहाँ से दूसरे आर्गन्स में ये मूव कर जाता है, वहाँ डिफेक्ट काज करता है। तो ये तो हो गया। अब सिम्टम्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हाई सस्टेन्ड फीवर, इसमें लगातार फीवर बना रहता है, और ये फीवर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, करीब 38 to 40 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में कहें तो 100 to 103 या 4 जो है डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। हेडेक होता है, स्टमक पेन होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती, कॉन्स्टिपेशन होता है। अभी हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है, तो उसका जो फीसेस होते हैं जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता तो स्मूथली जो है ये रिमूव नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाता है, और ये फैटल भी हो सकता है अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो। स्टूडेंट्स, इसका जो टेस्ट होता है, वैसे हमने बताया कि जो साइन और सिम्टम्स के आधार पे, लेकिन इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट से किया जाता है। इसी बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। स्टूडेंट्स, दूसरा जो बैक्टीरियल डिजीज है न्यूमोनिया, आप लोग बहुत परिचित हैं इससे। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है, इसमें दो बैक्टीरिया हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दूसरा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी होता है। इन दोनों से न्यूमोनिया होता है। स्टूडेंट, स्प्रेड्स थ्रू, यहाँ जाते ड्रॉपलेट्स होता है, एरोसॉल होता है, रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस आर यूटेंसिल्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी को न्यूमोनिया हुआ है, वो स्नीजिंग करता तो उससे ड्रॉपलेट्स जो है बाहर आते हैं और दूसरा आदमी उसको इनहेल कर लेता है तो उससे हो जाता है। और कभी कभी स्टूडेंट्स, जैसे हैंकी है, यूटेंसिल्स है, उसको एक आदमी स्नेजिंग किया और फिर हैंकी से अपना जो है वो नोज को भी साफ किया है, और वो उससे उसके हाथ में आ गए, और वो हाथ जो है अपनी किसी ऑब्जेक्ट्स में, यूटेंसिल्स में लगाता है और उसको दूसरा कोई शेयर करता तो उससे पहुंच जाता है। और साइट ऑफ इन्फेक्शन, जैसे अभी टाइफाइड में हमने बताया स्टूडेंट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारी जो लंग्स की एल्वियोलाई हैं उसमें होता, जानते हैं कि दोनों लंग्स होते हैं, तो यहाँ पे जो एल्वियोलाई इस तरीके से बैलून जैसे हमारा लंग्स है, इनको अफेक्ट करता है। और जब सोचिए एल्वियोलाई को अफेक्ट करेगा न्यूमोनिया तो रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे लिक्विड डिपॉजिट हो जाता है एल्वियोलाई में, इसलिए जो है प्रॉब्लम होती है। तो फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, व्हाट डू बाई चिल्स, फीवर आता है, ठंड के साथ आता है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है। सीवियर केसेस में स्टूडेंट्स हमारे
जो लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं और नेल्स होते हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो सीवियर केसेस में इस तरीके से भी होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो पैथोजेंस में आज बैक्टीरियल डिजीज में जाने, जिसमें हमने टाइफाइड और निमोनिया पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस